सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। दर्शन देख जीवा गुरु तेरा, पूरन करम होए प्रभु मेरा। एह बेनंती सुन प्रभु मेरे, देह नाम कर अपने चेरे। अपनी शरण राख प्रभु दाते, गौर प्रसाद किने विरले जाते। सुनो बिनो प्रभु मेरे मीता, शरण कमल वसह मेरे चिता। नानक एक करे अरदास, विसर नाही पूरन गुणतास। नानक एक करे अरदास, विसर नाही पूरन गुणतास। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम पूज्य परम गुरुदेव सतगुरु गरीब नवाज साहिब श्री हजूर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पवित्र दर्शनां दा आनंद मान रहे संत जनों, गुरमुखो प्यारियो, गुरु के सिखो तथा सर्व उपमा गुरु रूप साध संग जीओ। आज संग्रांद का दिन है। इसका अर्थ है संक्रांति। संक्रांति का अर्थ हुंदा है मौसम का बदलाव, जिन्हां नाल रुत्तां बदलदियां। रुत सीधा असर साडे मन ते करदी है। मन उसे तरह का सुभाव अनुसार कर्म करदा है। मनसा वाचा कर्मणा करके कर्म करन लई ये जीव स्वतंत्र है, तां यही कर्म करदा होया एक परम तत् परमेश्वर तो विछड़ जांदा है। महाराज जी कृपा करते हैं। इन रुत्तां दे विच जिवें 6 रुत्तां हन, 12 महीने हैं, इसी तरह शरीर दे भी 12 खंड हैं। 12वां खंड जिहड़े इस तो उपर सचखंड है। इस दी प्राप्ति होने पिछे जीव आत्मा जन्म मरण के चक्कर चों निकल जाती है, परम मोक्ष नूं प्राप्त होंदी है। वाहिगुरु जी जदों कृपा करते ने बिछड़ी हुई रूह ते, तदों मनुख जामा बख्शते हैं। वाहिगुरु जी जदों होर कृपा करते हैं तो सतगुरु के रूप विच मिलते हैं। वाहिगुरु जी की वाणी का वचन सुणाउंदे हैं
ਤੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਜੋ ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੱਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਸਤ ਦੀ ਹੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਸਤ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਨ ਔਰ ਤਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕੇ ਇਸ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਮਨ ਰਾਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਉਚਾਰੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਬਣੇਗਾ। ਮਨੁੱਖ ਆਇਆ ਹੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਚਿੱਤ ਆਤਮਾ ਹਾਂ, ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਗੁਰਮਤੀ ਰੰਗ ਮਾਨ। ਇੱਕ ਵਾਰਾਂ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਜਦੋਂ ਪਰਮ ਤਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ, ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਏ, ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਮਿਲਦੀ ਏ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੱਤ ਹੈ। ਤੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਵਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਸੱਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਕੇ ਅਨੰਚਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਉਪਸਥਿਤ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਤਨੇਮੀ ਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਥਾਵਾਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਪਰਮ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜਪੀਏ, ਜੋ ਅਤੀ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪੀਏ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰ ਲਵੀਏ। ਪਿਛਲਾ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ਰਾਵਣ ਦਾ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਭਾਦੋਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬੀਤਿਆ, ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ, ਉਸ ਗੋਬਿੰਦ ਅੱਗੇ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ, ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਜਾਈਏ। ਕਾਰਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਬੀਰ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਜੋ ਲੰਬ ਹੈ ਹੋਏ ਨਾ ਬਾਰੰਬਾਰ, ਜਿਉਂ ਬਨ ਫਲ ਪਾ ਕੇ ਭੋਏ ਗਿਰੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਲਾਗੇ ਡਰ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਥਿਆਉਣਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਲ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਨਾ ਗਵਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ,
उस वाहिगुरू जी दी दर्शन करन दी प्रार्थना करिए ते सत दे संगत कदी ना छोड़िए, कदी ना छोड़िए। 12 माह मांझ महला पंजवा घर चौथा, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। पादोए परम पुलानिया, दूजे लगा हेत। लख सिगार बनाया, कारज नाही केत। जित दिन दे बिनसी, तित वेले कसुन प्रेत। पकड़ चलाएन दूत जम, किसे ना देनी भेट। छड़ खड़ोते खिने माहे, जिन स्यों लगा हेत। हथ मरोड़े तन कपे, स्याहो होआ सेत। जिहा बीजे सोलुण, कर्मा संदरी खेत। नानक प्रभ शरणागति, चरण बोइत प्रभ देत। पादोए नरक न पाइया, गुर रखण वाला हेत। पादोए नरक न पाइया, गुर रखण वाला हेत। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मनुख वाहिगुरु जी ने अपने ही स्वरूप विच घड़िया है, बनाया है। फर्क केवल इतना है कि मनुख जीव आत्मा है और वाहिगुरु जी परमात्मा हैं। मनुख जीव हुंदा होया कर्म कर सकता है अपनी मर्जी नाल, पर कर्म का भुगतान करने वास्ते जिहो जे कर्म कीते ने उसका फल वाहिगुरु ने अपने हाथ विच रखे है। मनुख नूं ये उपदेश है गुरां दा, सतगुरां दा, कि वह चंगा कर्म करे। कर्म 3 प्रकार ना हुंदे, मनसा वाचा कर्मणा। मन तो, जबान तो बोल के ते इंद्रियां राही, शरीर दे इंद्रियां राही, इन मनसा वाचा कर्मणा कहते हैं। मनुख कर्म करन विच मजबूर है, कर्म हुंदा ही रहेगा इहदे कोलों, चंगा या माड़ा। मनुख नूं जिहो जी बुद्धि पिछले जन्मां दे कर्म कारण मिली है,
उस दे अनुसार ही ये कर्म करदा है। जे मनुख सतगुरु की बाणी पढ़े, सतगुरु के चरणों नाल लगे, सतगुरां दे चरणां अमृत दा पान करे, सतगुरु जी दा हो के रहे, सतगुरु की आग्या विच मन तन वरते, वाहिगुरु जी का नाम बड़े ही श्रद्धा और प्रेम नाल जपदा रहे, तो वाहिगुरु जी कृपा करके सबुद्धि बख्शते हैं, बुद्धि विच जागरता बख्शते हैं, जागना बख्शते हैं, बुद्धि सियाणी हो जाती है, सुचेत हो जाती है, मन नूं फिर चंगी सलाह देंदी है, नेक सलाह देंदी है कि तू गलत काम ना कर, चंगे कर्म कर। वीक सतगुरु जी फरमाउंदे ने कि मनुखा जन्म वाहिगुरु जी की सिमरन करने वास्ते तैनूं मिलिया, तू सिमरन करया कर, तू भुल गया है शरीर विच आके। भुलाउण वाली जिहड़ी वस्तु है वह माया है। इस जगत में दो ही वस्तुआं हैं, एक वस्तु सदा रहने वाली है, निता प्रति रहने वाली है, वह है सत। दूसरी वस्तु जो है संसार नूं चलाउण वाली, जो स्थिर नहीं है, टाइमली हुंदी है, वो है माया। माया भी वाहिगुरु जी ने आप ही बनाई है। तो जीव नूं पैदा करके इस माया के जंजाल दे विच पा दिता है। जंजाल विच ये जीव पिया 84 लाख जून भटकदा है, भोगदा है, पर उन्हां जूनां विच बुद्धि कर्म करने विच आजाद नहीं हुंदी। भोगी जूनां विच है कि मनुख भी भोगी जून ही, पिछले कीते हुए कर्मां के अनुसार इनू भोग भोगना ही पैंदा है। जो असी भोग रहे हैं दुख और सुख, ये पिछले जन्मां दे कीते कर्मां दा ही फल है। पर हुण जे असी चाहुंदे हां भी सुख होवे, शांति होवे, तृप्ति होवे, जीवन शैली विच आनंद होवे, तो हजूर फरमाउंदे ने जौं सुख को चाहे सदा, शरण राम की ले, कहो नानक सुन रे मना दुर्लभ मानस दे। सतगुरु महाराज त्यागमल से गुरु तेग बहादुर साहब महाराज फरमाउंदे ने कि ए प्राणी, ए मनुख, जे तू चाहना है कि पूर्ण सुख होवे, तां तू वाहिगुरु की शरण विच चलिया जा। अपना आप छड्ड के ही जाना पैंदा है, अपना त्याग करके ही जाना पैंदा है, मन विच गरीबी धारण करके ही जाना पैंदा है। जो कुछ भी मिलिया है ते वाहिगुरु की दात है, मेरा कुछ नहीं है, ऐं जान के ही सानू वाहिगुरु की शरण प्राप्त हुंदी है। सतगुरु जी फरमाउंदे ने सुख लैण वास्ते वाहिगुरु जी का नाम जपिया कर। और सतगुरु जी फरमाउंदे ने भी जो तेन मिलिया है ना, ये वाहिगुरु ने खुश होकर दिता है, प्रसन्नचित होकर दिता है। वेखी इनू अपना ना मन लवे, ये तो वरतन वास्ते दिता है। शरीर भी, इंद्रिय भी, माया भी, परिवार भी, पुत्र भी, धीआं भी तेरे अपने नहीं हैं, केवल वरतन मात्र दिते ने। ते तू ते केवल नाम ही जपने, तेरा ते केवल एक वाहिगुरु ही अपना है। वाहिगुरु जी ही हितकारी हैं। देखो कितना वड्डा हित है वाहिगुरु जी दे मन विच साडे लई, कि सानू इस जगत विच भेज के आप सतगुरु का स्वरूप धारण करके सानू समझाउण वास्ते आए, सानू नाम नाल जोड़िया, सानू सत दी बाणी बख्शी, सानू कीर्तन बख्शिया, सानू कथा बख्शी, बाणी बख्शी, और नाल दी नाल बड़ी कृपा की, पंगत भी बख्शी। भई ये जिहड़ा गुरु नानक दा सिख है ना, मनुख है ना, जिहड़ा
ये परम मनुख बन जावे, इसनूं कोई लोड़ ना रह जावे, कोई थोड़ो ना रह जावे, रोटी कपड़े तो भी वांझा ना रह जावे, वो भी पंगत विच मिल जांदा, गुरु चरनां च बैठे हां ते सत संग भी मिलदा है। हुण सत संग विच असीं सत नूं चुन लैणा है, सत दी पकड़ कर लैणी है, सतनाम वाहिगुरू दा जाप करना है ते शरीर नूं सुपने मात्र समझ के इनूं वरती जाना है। जिवें सुपना वेखीए ते सब कुछ सच ही लगदा है, पर सुपना टुट जाण तो बाद वो हमेशा दा हमेशा झूठ हो जाता है। पता लगता है कुछ है ही नहीं सी, कोई भी साडा अपना नहीं सी। इसे तरह जदों असीं जागांगे, सत नूं जाणांगे ते पता लगेगा कि संसार माया है, सुपना है, मिथ्या है, भुलावा है, इल्यूजन है। इस विच कुछ भी नहीं है सिवाय वर्तन तो, सिवाय वेखण सुणन तो, होर कुछ भी नहीं है। और फिर इस माया नूं असीं नाल लिआए नहीं हाँ, ये साडे नाल जावेगी भी नहीं। ये तो केवल खेड कराउण वास्ते वाहिगुरू जी ने मनुख नूं आरे लाउण वास्ते ये कुछ खेड बनाया है, तमाशा बनाया है। इसनूं आपां गुरु की अख नाल वेखीए, गुरु की बाणी द्वारा समझ लैके वेखीए, सोझी पा के वेखीए, विवेकशील होके वेखीए, तो सचमुच ये इवें ही लगता है। पर मनुख संतर है अपने कर्म विच, वो हमेशा दो चित्ता रहिंदा है। माया दी जगत विच भी गलतान रहिंदा है ते सत नूं भी जानण लई ये तैयार रहिंदा है, मन विच इच्छा रखदा है। पर जे मन की इच्छा जग्यासा बन जाए, असी जग्यासू बन जाइए, चाहवान बन जाइए, लोड़वंद बन जाइए, जिवें जल की प्यास लग जाए ना, तो प्यासे नूं जल मिले तो उन्होंने अमृत जैसा लगता है, जीवन जैसा लगता है। इस तरह जे कदे सानू लोड़ लग जाए, वाहिगुरू दे नाम की भुख लग जाए, तो फिर वाहिगुरू का नाम जीवन जैसा लगता है, अमृत जैसा लगता है, मिठा लगता है। पर मनुख दी बिरती इस तरह की है कि दो चित्ता रहिंदा है। ये जदों दा इंसानी जामे विच आया है, जदों दा इसनूं रस कस लगा है, अखां दे वेखण दा रस, नक दे सूंघण दा रस, कन्नां तो सुणन दा रस, रसना तो बोलन दा रस, खाण पीण दा रस, जदों दा ये रसीला होया है, इनू वाहिगुरू का नाम भुल ही गया। वाहिगुरू मेहर करे असी सुचेत होके सत नूं पकड़न दा यतन करिए ते गुरु की कृपा नाल पकड़ भी लईए। पादोए भरम भुलाणिया दूजे लगा हेत। सतगुरु जी फरमाउंदे ने, ऐ मनुख तू दुबदा भाव विच भुल गया है, तैनूं तां चाहीदा सी वाहिगुरू जी दे नाल प्रेम करना, कारण कि वाहिगुरू जी सच हन। वाहिगुरू जी का स्वरूप गुरु नानक जी सच हन। तैनूं गुरु नाल प्यार करना चाहिदा सी, गुरु नाल हित होना चाहिदा सी, पर तू इस संसार की माया विच अजिहा भुल गया है कि सतगुरु नूं छड्ड के तू माया नाल प्यार पा लिया, तेरा हित माया नाल हो गया। ये माया दो प्रकार की हुंदी है साध संगत। एक जड़ माया जिहदे विच सोना चांदी जमीन जायदाद गहने हीरे जवाहरात पुत्र धीआं आउंदे ने। दूसरा रूप जिहड़ा है वो इस्तरी।
ये दोनों ही रूप वरतन वास्ते ने, पर ऐ मनुख तू तो इन्हां विच ही फस गया। तू ये समझदा है कि जगत ही मेरा है, ये माया ही मेरी है, जो कुछ मिलिया है मैं ही इसका मालक हाँ, मैं ही स्वामी हाँ। ये भुलना इस मनुख कोलों हो गई है। ते इस भुलना अंदर लख सिगार बनाया, कारज नाही केत। भुला होया माया के जंजाल विच फसिया होया मनुख माया कमाउंदा, परिवार बनाउंदा, जमीन खरीददा, धन इकट्ठा करदा, परिवार वधाउंदा, रस्सां कसां विच जीवन बतीत करदा ते अपने आप नूं समझदा कि मैं ही इसका मालक हाँ, और इस रस के कारण इनू अपनी मृत्यु भी भुल जाती है। पर सच्चाई इनू उदों पता लगता है जदों मृत्यु आउंदी है, सब कुछ खत्म हो जाता है। फिर इनू समझ लगती है कि ओहो मैं लैण तां की आया सा, कट्ठा की कर लिया, जो कट्ठा कीता है उते नाल नहीं जाना। मैं समझदा सा ये मेरा है, आज तो छुट रहा है मेरे कोलों, मैनू इकलियां ही जाना पै रहा है। इसलिए हजूर फरमाउंदे ने लख सिगार बनाया। इस माया के जगत विच भावें कोई कितनी माया इकट्ठी कर लवे, कितना धन संपट कर लवे, कितना भी परिवार वड्डा कर लवे, कितना भी राज पैदा कर लवे, दुनिया का राज भी इनू मिल जावे, पर अंत विच कोई भी चीज जदों नाल नहीं चलेगी तेनू पछतावा होवेगा। भाई मैं ते जो कुछ बनाया है वो मेरा रह नहीं गया। जित दिन दे बिनस से तित वेले करसन प्रेत। यमराज वालों जमदूत जिन्हों प्रेत आंदे ने वो लैण वास्ते आउंदा है ना जदों, ते मृत्यु सत्संग इस प्रकार हुंदी है कि यह मनुख दा शरीर एक नहीं हुंदा, तीन हुंदे ने। ये बाहर दा शरीर 5 तत्त है ते अंदर दा शरीर 17 तत्त है। 17 तत्त दा शरीर जिहड़ा वो मरदा नहीं, इस 5 तत्त दे शरीर दे नाल नहीं मरदा। ते मन भी उस सूक्ष्म शरीर विच ही रहिंदा है, मन भी इस देही दे नाल नहीं मरदा। ते इस देही राही जो कर्म कीते हुंदे ने वो सूक्ष्म विच शरीर चले जांदे ने। भाव जिहड़ा भी पाप पुण्य असीं कीता हुंदा है, कर्म कीता हुंदा है, वो लिखिया जांदा है ते उसका एक हिसाब बन के सूक्ष्म विच दाखिल हो जांदा है। ते जदों प्रेत आउंदा है ना, जम आउंदा है ते वो बड़े जोर नाल सੱਟ मारदा है, जिस नाल ये मनुख देही दी बाहर दी खरड़ी जड़ी खत्म हो जाती, अलग हो जाती है, ते वो अंदर दी सूक्ष्म देही बमै मन कीते हुए कर्मां दे नाल लैके यमराज दे दरबार विच जांदा है। उस वेले दा जिक्र करदे ने महाराज, जित दिन दे बिनस सी पाई, जिदन मृत्यु आवेगी, तित वेले कैसन प्रेत। उदों जम तैनू इस सिक्ख्या देणगे कि तेरा कुछ नहीं है, तैनू साडे नाल जाना है इकलियां। पकड़ चलाएण दूत जम, किसे ना देनी भेत। एक गल होर सुन ले चंगी तरह, ऐ माया विच रचे हुए इंसान, ऐ रसीले इंसान, ऐ वाहिगुरू नूं भुले हुए मनुख, तू चंगी तरह समझ लवीं, मृत्यु आवेगी ते जरूर, पर किसी नूं दस के नहीं आवेगी। जम आवेगा जरूर तैनू लैण वास्ते, पर किसी नूं दस के पुछ के नहीं आवेगा। किस नूं कहिए नानका बिना पुछिया ही लै जाए,
हजूर कहते ने बिना पुछिया ही साडी देही नूं लै जांदा है। असी बिल्कुल कुछ भी नहीं रह जाते, स्वाद ही मिट्टी रह जाती है। उस वेले की हुंदा है, छड़ खड़ोते किने माहे जिनसों लगा हेत। असी इस दुनिया विच गृहस्थ विच रहिंदे हां, बहुत प्यार पाया हुंदा है। कुदरती परिवार नाल प्यार हुंदा है, बच्चियां नाल हुंदा है, घर नाल हुंदा है, जमीन नाल हुंदा है, जायदाद नाल हुंदा है, मान सम्मान हुंदा है, पैसे नाल हुंदा है, प्यार तो हुंदा है। जीवन जो जीविया, इस जीवन विच सब कट्ठा जो कीता है। मां प्यो मिले ने, भैन भरा मिले ने, स्त्री मिली है, परिवार मिले है, दोस्त मित्र मिले ने, हमसाए मिले ने। पर सतगुरु जी कहते ने छड़ खड़ोते खिने माए। जदों मृत्यु आई ना, तेनू नाल ले गई, ते उस वेले तेरे नाल रहने वाले सारे ही जेरे तेरे नाल सखा भाई सन ना, उन्हां तेरा साथ छड़ दिता। जिन्हां नाल तू प्यार कीता सी, उन्हां तेरा साथ छड़ दिता। मां ने छड़ता, प्यो ने छड़ता, स्त्री ने छड़ता, पुत्रा ने छड़ता, दोस्तां ने छड़ता। कोई भी वड्डे तो वड्डा हितकारी जिन्हों तू बहुत हित करदा सा, बहुत चाहुंदा सा, तेरे नाल नहीं गया। तैनू जीवदियां नूं ही छड़ दिता। तेरी गति ये होई। छड़ खड़ोते खिनिवा है जिनस्यों लगा हेत। हाथ मरोड़े तन कपे स्याहो होआ सेत। मृत्यु का एक छोटा जिहा उन्होंने नक्शा दसिया इस विच। मृत्यु बहुत खतरनाक है, बहुत डिटेल नाल नहीं जानने वाली, पर फिर भी बहुत दर्दनाक होंदी है। महाराज जी समझाते ने भी हाथ कट दिते जाते ने, बाजू पैर कट दिते जाते ने, तन कट दिता जाता है, जर्रा जर्रा कर दिता जाता है। तो उस डर नाल की हुंदा है कि बंदा चिट्टा हो जाता। जब बाकी रह जाता है ना, तो असीं देखते हैं कि मुर्दा बिल्कुल चिट्टा हुंदा। फिर की हुंदा है, इनू अग्नि दे दी जाती है, काला हो जाता है, काली सुआ हो जाती। फिर की हुंदा है, कुछ देर सुआ पई रह जाए ना तो चिट्टी हो जाती। फिर की हुंदा है, जे उस सुआ नूं ना संभालिया जाए तो हवा च उड़ जाती है। बस साडे कोल इस मनुख दा एक सवाई दी चुटकी रह जाती है। असीं उहनूं धर्म कर्म विच जां पानी च पा दिंदे हां या दबा दिंदे हां। बस इस तो वध साडे हत्थ विच कुछ नहीं रह जाता। एडा वड्डा सोहना शरीर जो इन्नियां बातां करदा सी, इन्ना प्यार दिंदा सी, उसका रिजल्ट यह होया कि वह स्वाह दी पोटली रह गया। हथ मरोड़े तन कपे स्याहो होआ सेत। संगतां ने बड़े हैरान होकर पूछा गुरु अर्जन साहिब महाराज, इस मनुख नाल ऐसा क्यों होया, की वजह हुई? ये बहुत चंगा सी। महाराज जी कहते ने ये कर्म चंगे नहीं सन। बंदा ते चंगा सी पर कर्म माड़े करदा सी। कर्म इहदे माड़े सन, इस करके कट्टिया गया है, हथ मरोड़े गए ने, मृत्यु हो गई है। इसकी देही कट दी गई है, कई वार कट्टी गई है। इसे तरह हर वेले मृत्यु नाल हुंदा है। ये तां होया है भाई कि एक खेत कर्मा संदड़ा है, इत्थे मनुख कर्म करने वास्ते आया है। शरीर एक खेत है, मन कर्म करने वाला है। जो जे कर्म करेगा ओहो जिहा नूं भोगना होवेगा।
इसलिए बड़ा मिठा संदेश गुरु नानक साहब ने सानू बख्शिया, जित कीता पाईए अपना सकल बुरी क्यों कालीए। ऐ मनुख जे अपना ही कीता पाईदा है ना, तां फिर तू किसे दा बुरा न कर। सब तो बड़ी बंदगी ये है कि मनसा वाचा कर्मणा असी किसे दा बुरा न करिए। गुरमुखो प्यारियो, गुरु के सिखो, ये तद ही संभव हो सकता है जे वाहिगुरु साडी रसना ते वस जावे, जे वाहिगुरु साडे मन विच वस जावे, जे वाहिगुरु जी साडे प्राणा विच वस के साडे मन नू रसदायक कर देण, असी बहुत प्रेम नाल रस नाल वाहिगुरु दा नाम जपीए, ये कुछ हो जाए ना, फिर शरीर नाल ऐसा नहीं हुंदा है। फिर शरीर नू सतगुरु दे भेजे हुए देवगण लै जांदे हन। जम द्वारे इसने नहीं जाना हुंदा, किसी तरह की भी कोई सजा इसनू नहीं मिलती। जिथे जांदा है उत्थे गुरु नानक दा दरबार हुंदा है, गुरु नानक दे प्यारे कीर्तन कर रहे हुंदे ने। गुरु नानक दी संगतां बड़ी एक मिक होके सतगुरु दा दर्शन कर रही हुंदियां। उत्थे अपने आप विच परमेश्वर आप ही वरतदा है, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं हुंदा। ना उत्थे सूरज है, ना चंद्रमा है, ना हवा, ना पावन, ना पानी है, ना दुख है, ना क्लेश है, ना मृत्यु है, ना आवा है, ना जावा है, ना दिन है, ना रात है, ना संझ वेला है, ना सुबह का कोई वेला है। सब वेला एक है ते इको ही एक दिसदा है। सब कट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे। आपां जिंदगी विच जिउंदियां होइयां वाहिगुरु जी दे इस रूप दा दर्शन कर लवीए। गुरु नानक दे दरबार खिड़ी गुलजार सदा, जिथे राम ते नाम दी वसदी फवार सदा। जिस घर विच इको ही एक नाम ही नाम है, जिस घर विच आनंद ही आनंद है, जिस घर विच सुख ही सुख है, जिस घर विच परम संतोष ही संतोष है, जिस घर विच कोई कलेश नहीं, कोई झगड़ा नहीं, वो घर गुरु नानक दा घर है, वो घर सचखंड है। इसकी प्राप्ति असीं अपने जीवन काल च कर लईए। नानक प्रभ सरनागति चरण बोइत प्रभ देत। जे असीं गुरु दी शरण नूं प्राप्त कर लवीए, जे असीं गुरां नाल अपना प्यार पा लईए, प्यार दी गंढ पक्की बना लईए। गुरु आखे ये सिख मेरा है ते सिख आखे गुरु मेरा है। सिख दे विचों गुरु दा दीदार होवे ते गुरु दे चरनां विच बैठा होया सिख सदीवी सचखंड च बैठा लगे जापे। इहो जी गंढ असी गुरु नानक नाल बना लवीए, इहो जिहा प्यार असी गोबिंद नाल पा लवीए, इहो जी रूह असी बना लईए भी गुरु नानक सानू लभदा फिरे, सानू ढूंढदा फिरे, सानू लोड़दा फिरे, सानू चाहे भी असीं उहदी गोद विच जाके बैठ जावीए ते सानू निहाल निहाल कर देवे। अपनी दयालता जा अपने तरस दा मींह पावे और सानू बख्श लवे, सानू बख्श लवे, सानू बख्श लवे। नानक प्रभ सरनागति गुरु अर्जन साहिब फरमाउंदे ने, जिहड़े वाहिगुरु जी दी शरण विच रहिंदे हन, वाहिगुरु दे भय विच रहिंदे हन, वाहिगुरु दे भय विच। आप वेखदे हो गुरुद्वारे भाई साहब रहिंदे ने, सेवादार रहिंदे ने, कीर्तनीए रहिंदे ने, ये गुरु दे भय विच रहिंदे ने, गुरु दे आदर विच रहिंदे ने, गुरु दे डर विच रहिंदे ने, गुरु दी सेवा विच रहिंदे ने। तदे गुरु इन्हां दी रक्षा करदा है, हर तरह संभालदा है, इन्हां नूं भी संभालदा है, इन्हां दे परिवार नूं भी संभालदा है।
इन्हां नूं मान भी बख्शदा, सम्मान भी बख्शदा, सब कुछ दिंदा है। इस तरह जी असीं भी गुरु द्वारे ही वस जावीए। ये वसना हुंदा है मन दा, मन करके वसना हुंदा है, मन करके असी गुरु नूं अपने नाल ले लईए। किस तरह लिया जा सकता है? गुरु पवन है, सुनिया ना आपने पढ़िया, गुरु पवन है। पवन गुरु पानी पिता, पानी का संग रखिए, धरती का संग रखिए। धरती ते पानी का संग तो असीं हमेशा ही रखते हैं, पर पवन गुरु का संग नहीं रखते। पवन नूं वरतते जरूर हाँ। पवन की है? जिहड़ा साह लैंदे हाँ, श्वास लैंदे हैं, पवन है। पर जदों इस श्वास द्वारा असी वाहिगुरु 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 इतना प्यार नाल बोलते रहांगे ना कि गुरु साडे अंग संग हो जाएगा। पवन गुरु साडे अंग संग हो जाएगा। फिर की होएगा? इस पवन विच, इस श्वास विच जदों पूर्ण तौर ते सारे श्वासां विच असीं वाहिगुरु नाम भर दिता कि फिर की होएगा? ये गुरु जिथों आया है ना, सानू उत्थे लै जाएगा। ये गुरु वाहिगुरु तो बन के आया है, वाहिगुरु दे दर तो आया है, परमेश्वर तो आया है, गोविंद तो एक गुरु बन के आया है। चरण बोएथ प्रभ देत। बोएथ मैंने हुंदा पुल, जिवें नदी ते पुल होवे ते आपां उरार खड़े होइए ते पुल राही पार चले जाईदा। इसे तरह श्वासां दा पुल बन जांदा है ते गुरु दे संग होके असी सचखंड विच पहुंच जाने हैं। सत दा खंड साडे अंदर ही है। दसम द्वार च बैठा जो बंद है, उत्थों बैठा सानू वेख रहे है। गुरु द्वारा सानू प्रबंध बनाउंदा नाल आउण लई। जिहड़े पवन गुरु दे संग हो जांदे ने, सिमरन करदे ने, गुर मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर तिस सदा संभाले। सिखां ने सिमरन द्वारा अपने गुरु नूं भी संभाल कीती है। जिन्हां सिखां ने वाहिगुरु नाम जप के गुरु की संभाल कीती है ना, गुरु ने उन्हां नूं वाहिगुरु दे दर ते लिजा दिता है। जिवें असीं गड्डी 'च बह जाने आ ते गड्डी सानू नेपरे लै जांदी है, तोड़ लै जांदी है जिथे मंजिल होवे उहदी जाण दी। हवाई जहाज 'च बह जाने आ ते सानू मंजिल ते ओह लै जांदा, सानू आपूं कुछ करना नहीं पैंदा। इसलिए वाहिगुरु नाम जहाज है। ये जहाज है पवन सतगुरु। ते वाहिगुरु बोलो, वाहिगुरु सुनो, वाहिगुरु पढ़ो, दिन और रात वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, पर प्रेम नाल, प्रेम नाल, प्रेम नाल। भाई रे राम कहो चित लाए, भाई रे राम कहो चित लाए। प्रेम नाल, जितने प्रेम नाल असी बोल सकते हैं, ज्यों ज्यों बोलांगे ना प्रेम वध जाएगा। क्योंकि प्रेम सतगुरु दे चरनां विचों मिलदा, होर किसे थां नहीं मिलदा, किसी हट्टी तो नहीं मिलता, किसी दुनिया विच नहीं मिलता। प्रेम तो सतगुरु दे चरनां विचों मिलदा ते सतगुरु दे चरण गुरमंत्र है, गुर शब्द है। इसलिए प्रेम नाल वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, ये बैखरी जाप है। इनू बोलण दा जाप कहीदा, बैखरी बाणी कहीदा, बैखरी जाप कहीदा। दूसरी मध्यमा बाणी है, श्वास नाल जपना बिना आवाज तो।
तीसरी पातशाही बाणी है, एक श्वास नाल 5 7 10 वार जपना। फिर वाहिगुरु जी सानू अपने कुछड़ चुक लेंदे हन, गोद विच बिठा लेंदे हन, फिर परा बाणी विच जाप चलिया जांदा है। फिर वाहिगुरु जी आप किरपा करके वाहिगुरु बुलवाउंदे हन। आप जपाएं जपें सो नाओ, आप गावाएं सो हर गुण गाओ। तानो गुरसिखड़े ने, तानो भगत ने, तानो गुरु दे प्यारे ने, धन ओ गुरु दे शहीद ने, धन ओ गुरु दे चाकर ने, मरदाने वर्गे जिन्हां श्वास श्वास गुरु दी संगत कीती, गुरु नूं प्रसन्न रखिया, कीर्तन राहीं, सेवा राहीं, कथा राहीं, वचन दी पालना राहीं। सतगुरां ने भी ऐसे सेवकां नूं निहाल निहाल कर दिता। गुरु महाराज साडे बच्चों ते भी नजरे करम करे, असी भी प्रेम नाल वाहिगुरु 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 जपदे रहिए ते वाहिगुरु नाम जहाज जिहड़ा ये सानू परम गति देंदा है, वाहिगुरु जी दे कोल लै जांदा है, परम मोक्ष देंदा है, सद खुशियां सद चाव बख्शदा है, सदीवी आनंद बख्शदा है। जौं सुख को चाहे सदा, शरण राम की ले, कहो नानक सुन रे मना, दुर्लभ मानक दे, भादोए नरक ना पाइए, गुर रखण वाला हेत। गुरु साहब फरमाउंदे ने, गुरु नाल प्यार करो, गुरु दी बाणी सुनो पढ़ो, गुरु दा कीर्तन करो, गुरु दे चरण दबाओ, गुरु दा दर्शन करो, गुरु तो विटों जाओ, गुरु तो वारे वारे जाओ, गुरु दियां परिक्रमा करो और गुरु तुहाडे अंग संग अंग संग पवन होके जीवन दे रहे है। ये जीवन जिहड़ा दिता है ना, ये श्वास ते टिकिया होया है। इन श्वासां नूं प्राण कहीदा है। प्राण दा दाता प्राणनाथ गुरु नानक है। उसने सारा जगत अपना नथिया होया नूं दीनानाथ कहंदे ने, प्राणनाथ कहंदे। इसलिए गुरु दे होके रहोगे ना, फिर माया दे संसार विच आके गोते नहीं खाने पैणगे, नरक स्वर्ग नहीं भोगना पएगा, आनंद दीयां घड़ियां प्राप्त होणगियां, आनंद मंगल विच जीवन बतीत होवेगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। राम कली महला तीजा। आनंद को ओंकार सतगुरु प्रसाद। आनंद भया मेरी माए, सतगुरु में पाया, सतगुर ता पाया सही सेती मन वधियां वधाइयां। राग रतन परिवार परियां शब्द गावन आईयां। शब्दों तंगाओ हरि केरा मन जिनी वसाया। कहे नानक आनंद होआ सतगुरु में पाया, ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सवारना। सबना गला समरा स्वामी सो को मन वसारे। कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले, सच्चे साहिबा क्या नहीं घर तेरे, घर तो तेरे सब कुछ है, जिस दे सो पावे। सदा शिव सलाह तेरी नाम मन वसावे। नाम जिनके मन वसिया बाजी शब्द घनेरे। कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं घर तेरे, साचा नाम मेरा आधारो। साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया। कर सांस सुख मनाए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया। सदा कुर्बान कीता गुरु विटों जिस दियां वडियाइया। कहे नानक सुनो संतो सब तरो प्यारो। साचा नाम मेरा आधारो। वाजी पंचवत खर सुभागी। खर सुभागी शब्दवाजी कला जित कर तारियों। पंच दूत दिवस कीते काल कंठ कुमारिया। तुर कर्म पाया तुझ जिन कौ से नाम हर के लागे।
कहे नानक तै सुख होवा तित घर अनहद वाजी अनंत सुनो वडभागियो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल वसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन भय सरसे पूरे गुटते जानी सुनते पुनीत कहते पोए सतपुरया भरभूरे बिनवंत नान गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे श्लोक पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत दिवस रात दो दाई दाया खेले सगल जगत चंगियाइयां बुरियाइयां वाचे धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़े कै दूर जिन्नी नाम तिहाया गए मुसकत खाल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पढ़ सुन के कथा सुन के ज्ञान मंडल विच आया।